Hello everyone, this is Omkar Deshpande. Welcome you back for the business study classes. We have started with the topic directing. We have covered the elements of directing like supervision, motivation, leadership, and we have started with the communication. In that communication, today's class I am going to deal with the barriers of communication. In that the second one is organizational barriers. So when it comes to organizational barriers, barriers in the sense what it is a disturbance or a noise which is created while communicating from one person to another person. So today we are going to look after what are those organizational barriers. First let's understand the meaning of organizational barriers. The factor related to organization structure. If you see the organization structure, you people have learnt in the fifth topic organization structure, how the structures will be framed like functional, divisional, these things. Authority relationship, when it goes to authority relationship from top to middle to lower level, so these are the flow of authority. Rules and regulations, when it comes to rules and regulations sometimes act as a barrier. Sometimes it's the structure and the authority relationship and the rules and regulation may create a barriers in the effective communication. The effective communication में यही एक barriers create हो जाता है. This only may create a problems. तो आज देखेंगे which are those kind of organizational barriers are there. In that the first one is organizational policies. If you see the organizational policies, कहीं बार ऐसे होता है कि हमारे जो policies है that itself may create a barriers in communicating with the people. तो यहाँ पर क्या है, if the organizational policy explicit or implicit, it is not supportive to free flow of communication, it may hamper effectiveness of communication. कई बार हमारे policies ऐसे बनाते हैं कि उसमें हम कोई बात ही नहीं कर सकते. whatever they said we have to listen, we have to do it. हमको कुछ express करने के लिए भी नहीं होता है, we may not tell it. That suppose for example देखो, when a senior manager is there, when your rule says that कि whatever he says you have to listen, then one go flow, whatever he says we are going to listen it out. So कई बार हमारे policies भी barriers हो सकते हैं. एंड सेकेंड वन अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशन. इफ यू सी द रूल्स एंड रेगुलेशन, यहाँ पर होता क्या है, rigid rules and cumbersome procedures may be hinders to the communication. Similarly, communication through prescribed channel may result in delay. तो कई बार ऐसे हमारे रूल्स एंड रेजोल्यूशन भी कई बार डिफिकल्ट हो जाता है कम्युनिकेट करने में, बिकॉज इट मे टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कम्युनिकेट द थिंग्स, और इट मे क्रिएट कि वो 1% to 1% दे गो ऑन एक्सप्रेसिंग. सो कई बार तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लेट या दैट मे क्रिएट अ प्रॉब्लम. तो यही है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस. देन थर्ड वन इज स्टेटस. इवन व्हेन इट कम्स टू एन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, status also play a very important. Now status of superior may create a psychological or physiological distance between him and subordinate. कई बार status भी matters हो जाता है. when a top level management में one managing director is there, तो he is having the some status. Now when he is having status, a subordinate may not able to communicate with him to express whatever his opinion are there. So कई बार एक status भी matters हो जाता है जहाँ तक communication का barrier हो. A status conscious manager may also not allow his subordinate to express his feelings freely. जब एक मैनेजिंग डायरेक्टर आ जाता है, मतलब एक subordinate people he cannot express his feelings whatever it is there with him. Why? Because they feel that कि status का matter एक आ जाता है. So this is what a status also is one of the thing which matters when it comes to organizational barriers. So the next is fourth is complicated in organization structure. तो कई बार हमारा organization structure इतना complicated है कि that may will become a difficult to express the things. In an organization where there are number of managerial levels, communication get delayed and destroyed as a number of filtering points are more. तो कई बार ऐसा रहता है कि हमारा स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि that itself will delay, that it itself will become difficult to express our feelings or express our thing what we want to tell it out. So complicated in the organization structure is also one of the barriers when it comes to organization structure, organization barriers. So the next fifth point says organizational facilities.
इफ़ यू सी द ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी, द इफ फैसिलिटीज फॉर स्मूथ, क्लियर एंड टाइमली communication are not provided, communication may be hampered. Facilities like frequent meetings, suggestion box etc, lack of this facility may create a communication problem. तो कहीं पर कैसे हो जाता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज़ भी मैटर हो जाता है कम्युनिकेशन में. नाउ इफ़ यू सी द इफ़ द फैसिलिटीज़ लाइक स्मूथ, क्लियर एंड टाइमली कम्युनिकेशन आर नॉट प्रोवाइडेड, ये सब कुछ अगर हमने प्रोवाइड नहीं किया है तो कहीं ना कहीं हमारा कम्युनिकेशन में हैम्पर्ड हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है. और फ्रिक्वेंट लाइक मीटिंग्स, सजेशन बॉक्स एक्सेट्रा, दीज आर द लैक ऑफ फैसिलिटीज़ विच में क्रिएट अ कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो सकता है. या हमारा फैसिलिटीज़ भी कहीं बार हमको कम्युनिकेट करने में हेल्प नहीं करते हैं, तो दैट में लीड टू बैरियर्स. सो ये था हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स. विल सी द नेक्स्ट वन, दैट इज पर्सनल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन. ये क्या है पर्सनल बैरियर्स? पर्सनली फ्रॉम आवर साइड ऑल्सो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस. कहीं बार जो चीज़ें हम बताना चाहते हैं वो ठीक से हम बता नहीं पाते. मे बी हमारा लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो सकता है, मे बी हमारा लैंग्वेज जो हम बात करते हैं वो फ्लुएंसी नहीं रहता है, प्रॉपर वर्ड्स हम यूज़ नहीं कर पाते, कई बार गेस्चर या सिम्बल्स ठीक से हम यूज़ नहीं कर पाते. सो these are the things are there. कई बार your personal barriers also one of the thing which matters. Okay, now the factors of both sender and receiver may expect influence on effective communication. Some of the personal barriers of superior and subordinate, हमारा सीनियर्स और हमारा जूनियर में भी कहीं बार क्या हो जाता है, some personal barriers will also create a communicating. तो देखेंगे क्या क्या what are the problems there. First is fear of challenges to authority. First of all, our senior person who is called superior, ही इज़ द अथोराइज्ड पर्सन, कहीं ना कहीं उसको इतना अथॉरिटी रहता है कि हम बताने में भी डर जाते हैं. सो इफ द सुपीरियर परस्यू दैट अ पर्टिकुलर कम्युनिकेशन में एडवाइस दे अफेक्ट हिज अथॉरिटी, ही और शी मे विथ होल्ड और सुपीरियर सच कम्युनिकेशन. सो कहीं बार क्या होता है, हमारा अथॉरिटी जो सीनियर पर्सन रहता है उसके साथ कम्युनिकेट करना ही बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, हम डर जाते हैं उसके साथ बात करने में. ओके, ये होता है फर्स्ट पॉइंट. लेट्स लुक एट अ सेकेंड वन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन इज सबॉर्डिनेट. कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस का भी यहाँ पर सवाल आ जाता है. वी लैक इन कॉन्फिडेंस, हमको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते करके. इफ सुपीरियर डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस ऑन इज कॉम्पिटेंस ऑफ देयर सबॉर्डिनेट, दे मे नॉट सीक देयर एडवाइस और ओपिनियन. कई बार क्या अथोराइज पर्सन उसको ऐसा लगता है कि ये पर्सन ठीक से बात नहीं करता, इसका ओपिनियन क्या कुछ ठीक से नहीं है, मतलब उसको अपॉर्चुनिटी भी कहीं बार नहीं देता कि एक्सप्रेस करने में, या फिर जो सजेशन वो देना चाहता है वो सुनना भी नहीं चाहता है. तो कहीं बार ऐसे भी हो सकता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर एंड ऑन इज सबॉर्डिनेट. तो द नेक्स्ट थर्ड होता है अनविलिंगली टू कम्युनिकेट. तो कहीं बार ऐसे रहते हैं, थोड़े लोग आपने देखा होगा कि बात करने में भी डर जाता है, दे फील वेरी शाई टू टॉक अबाउट इट. ओके, बात करने में भी वो लोग कहीं तो शर्मा जाते हैं. तो यहाँ पर क्या है, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, उनको बात करने का थोड़ा इंटरेस्ट भी नहीं रहते. मैनी पीपल यू पीपल हैव सॉ इट, दे आर वेरी गुड इन एडमिनिस्ट्रेटिव, दे आर वेरी गुड, बट उनको कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम हो जाता है कि दे आर नॉट मच इंटरेस्टेड इन दैट. सो वी लुक एट समटाइम्स सबॉर्डिनेट मे नॉट बी प्रिपेयर टू कम्युनिकेट विद देयर सुपीरियर. तो सुपीरियर के साथ कम्युनिकेट करने में भी कई बार उनको इंटरेस्ट नहीं रहते, या कई बार उनको विलिंगली नहीं है इंटरेस्ट रहते हैं. इफ दे परस्यू दैट इट मे एडवाइजली अफेक्ट द इंटरेस्ट. तो यहाँ पर इंटरेस्ट का भी एक मैटर हो जाता है, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है कम्युनिकेट करने में, मतलब दैट विल बी क्रिएट अ पर्सनल प्रॉब्लम्स. सो नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट, लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स. तो कई बार जब बात इंसेंटिव्स का आता है, मतलब मॉनिटरी बेनिफिट्स फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन गिव्स टू देयर एम्प्लॉयज़. तो इफ़ देर इज़ नो मोटिवेशन, अगर फ्रॉम एम्प्लॉय साइड से, अगर सो फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय को कहीं बार अच्छे से मोटिवेशन नहीं मिलता है, या इंसेंटिव्स फॉर कम्युनिकेशन, या सबॉर्डिनेट मे नॉट टेक इनिशिएटिव टू कम्युनिकेट, उनको अच्छे तरह से इनिशिएटिव लेने के लिए इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, या उनको ठीक से सैलरी नहीं देते हैं, या फिर उनको अच्छे से मोटिवेशन नहीं करते, इवन दैट मे लीड टू लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव. या कहीं ना कहीं फैसिलिटीज़ भी हमारा ऐसा हो जाता है कि
दैट इटसेल्फ विल क्रिएट देम लैक ऑफ इनिशिएटिव, उनको इनिशिएटिव लेने में इंटरेस्ट ही क्रिएट नहीं होता. वाई? बिकॉज ऑफ दीज आर द थिंग्स, नो मोटिवेशन और इंसेंटिव्स का प्रॉब्लम रहता है, और कई बार इनिशिएटिव लेने में उनको इंपॉर्टेंस देते ही नहीं. सो दीज आर द रीजन मे क्रिएट. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया है. इफ देर इज नो रिवॉर्ड्स, अगर उनको मॉनिटरी बेनिफिट दिया नहीं है और एप्रिसिएशन फॉर गुड सजेशन, अच्छा काम किया तो भी उनको तारीफ नहीं करते हैं, द सबऑर्डिनेट मे नॉट बी विलिंगली टू ऑफर यूजफुल सजेशंस. तो कई बार देखो उनको सैलरी भी अच्छे से आप नहीं देते हो या उसको सजेशंस को आप वेलकम भी नहीं करते हो. ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट हैपन, ही विल बिकम नर्वस एंड ही मे नॉट बी गिविंग यू द सजेशन, और उसका सजेशंस को हम एक्सेप्ट भी नहीं करते. कई बार ऐसे भी हो जाता है. सो दीज आर द थिंग्स विच विल लीड टू पर्सनल बैरियर्स. तो कई बार क्या हो जाता है, रिवॉर्ड्स भी नहीं मिलता, अच्छे सजेशंस के लिए इसके पास एप्रिसिएशन भी नहीं मिलता. ये सब चीज़ें क्या हो जाता है, कई बार हम कम्युनिकेट करने में दीज आर द थिंग्स ऑल्सो दैट मैटर्स इट आउट, कि हम कितना भी करो ये कुछ सपोर्ट नहीं करता, ऐसे भी कई बार उसको लग सकता है. सो दैट इज़ व्हाट अबाउट दीज आर ऑल आर कॉल्ड एज दी पर्सनल बैरियर्स. कई बार पर्सनली ही बैरियर हो सकते हैं. थैंक यू.